Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Fragrance. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I've taken from previous year papers and set is a games and tournament based set. And the set says A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, and K are 11 players selected by Dream 11 Cricket Tournament team named Warriors. The tournament has 6 matches. The team gives an opportunity to all the 11 players mentioned to play in first 3 matches in the tournament. Depending on the number of centuries, that is to say, score of at least 100 runs hits by the players, they get an opportunity to play in the remaining 3 matches of the tournament. A player who hits a century in one of the first 3 matches gets an opportunity to play in one more match out of the remaining three. Similarly, a player who hits a century in 2 or 3 matches for the first 3 matches gets an opportunity to play in two or all other 3 matches, 3 more matches out of the remaining three, respectively. The player who are not given any opportunity to play in the remaining 3 matches are replaced by the other players who have been kept in the reserve by the team. None of the players scored more than 1 century in any of the following in any of the matches. Push or the following points are known. Out of the 11 player mentioned, only B played all the 6 matches in the tournament. Point number two, get out of the 11 players mentioned, 5 player played exactly 5 matches in the tournament. Point number three, get the number of players out of the 11 players played mentioned who hit a century in match number 1, 3, and 2 of the tournament are in AP in that order. Question number one पढ़ लेते हैं. Question number one कह रहा है if the number of matches who hits a century in match 3 is a double of the number of players who hit a century in match number 1, then how many players hit a century in match number 2? Question number 2 कह रहा है if only one among 11 players hits a century in match number 1, then how many players hit a century in match number 2? Question number 3 कह रहा है if 10 players hits a century in match number 2, then how many friends hit a century in match number 1? Question number 4 कह रहा है how many combination are possible for the number of players who hit a century in match number 1, 2 and 3. ठीक है. गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पे चल रहा है जहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है कि 11 प्लेयर्स हैं, दे आर प्लेइंग इन टूर्नामेंट, जहाँ पे दे आर प्लेइंग इन फॉर 6, मतलब दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट वेयर देयर आर 6 मैचेस. नाउ दे नीड टू प्ले ऑल 3, मतलब ऑल 11 प्लेयर्स नीड टू प्ले फर्स्ट 3 मैचेस, और जैसा उनका परफॉर्मेंस होगा पहले 3 में, इफ दे आर एबल टू स्कोर सेंचुरी इन एनी ऑफ द मैचेस, उसके हिसाब से दे विल गेट एन एडिशनल मैच. लाइक इफ समवन स्कोर्स 1 सेंचुरी ही गेट्स 1 additional match. If someone scores 2 centuries, he gets 2 matches. Someone scores 3 century all 3 matches, तो वो 3 एडिशनल मैच खेलेगा. और अपने को ये बता दिया कि किसी एक मैच में कोई एक बंदा एक ही सेंचुरी मारता है. ठीक है? इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? एडिशनल पॉइंट दिए गए हैं, उस पे दिमाग लगाते हैं. उसके पहले एक छोटा टेबल बना लेते हैं. ठीक है? मैच नंबर 1, मैच नंबर 2, मैच नंबर 3, 4, 5, 6. ठीक है? ये हो गया. अब अपने को क्या पता है? अपने को पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि आउट ऑफ द 11 प्लेयर मेंशन ओनली बी स्कोर्ड ऑफ ऑल द 6 मैचेस इन द टूर्नामेंट. पूरे प्लेयर में से बी वाज़ द ओनली प्लेयर हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल 6 मैचेस. इसने 6 मैचेस खेले. वो क्यों खेले इसने? बिकॉज़ इसने पहले 3 मैचेस में सेंचुरी हिट करी होगी और प्लस इसके 3 एडिशनल मैच इसको खेलने को मिले. ऐसा, ठीक है? तभी वो 6 मैचेस खेल पाया. ठीक है? फिर पॉइंट नंबर 2 कह रहा है आउट ऑफ द 11 प्लेयर्स मेंशन 5 प्लेयर्स प्लेड एक्जेक्टली 5 मैचेस इन द टूर्नामेंट. जो 11 प्लेयर हैं उनमें से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक्जेक्टली 5 मैचेस खेले हैं. 5 मैचेस कैसे खेले होंगे? उन्होंने 11 में से तो एक तो बी हट गया, अब बचे 10 प्लेयर. उन 10 प्लेयर में से 5 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 5 मैचेस खेले हैं. मतलब 5 मैचेस में हाँ, नहीं 5 मैचेस खेले हैं. 5 मैचेस कैसे खेले होंगे? 3 मैच तो टूर्नामेंट वाले खेले होंगे और 3 एडिशनल मैच मिल गए होंगे उनको. सॉरी 2 एडिशनल खेले होंगे. 2 एडिशनल का मतलब उन्होंने 2 मैचेस में सेंचुरी मारी है और किसी एक मैच में वो नॉन सेंचुरी वाला मैच होगा उनका. ठीक है? ये पॉइंट आपको आई होप समझ आ रहा होगा. बेसिकली फिर से समझा देता हूँ. कह रहा था कि भाई 10 में से 5 प्लेयर्स ऐसे थे, मतलब 11 में से 5 प्लेयर ऐसे थे जिसमें से एक तो मैंने उसको हटा दिया, तो मैंने उसको 10 लिख दिया है कि 10 प्लेयर में से 5 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने 5 मैचेस खेले. 5 मैचेस कैसे खेले होंगे? पहले तो 3 मैच टूर्नामेंट वाले खेले होंगे और उनको 2 एडिशनल मैचेस खेलने का मौका मिल गया होगा. 2 एडिशनल का मतलब इन दोज़ 2 मैच, मतलब इन फर्स्ट 3 मैचेस दे हैव स्कोर्ड 2 सेंचुरीज़ जिसकी वजह से उनको 2 एडिशनल मैच मिले. ठीक है? अच्छा.
पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि मैच नंबर 1, मैच नंबर 3, मैच नंबर 5, मैच नंबर 1, मैच नंबर 3 एंड मैच नंबर 2 इज़ इन एपी इन दैट ऑर्डर। एपी इन दैट ऑर्डर का मतलब मान लो ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, ऐसा? ये कह सकते हैं। यानी कि अगर मैं मैच नंबर 1 प्लस मैच नंबर 2 प्लस मैच नंबर 3 का सम लूँगा तो वो क्या बन जाएगा? वो इन तीनों का सम यानी कि a माइनस बी प्लस ए प्लस बी जिससे माइनस बी और प्लस बी कैंसल होने की वजह से क्या होना चाहिए? 3a होना चाहिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैच नंबर 1, मैच नंबर 2 और मैच नंबर 3 में मिला के जितनी सेंचुरी हिट करी गई है, वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। ये पॉइंट नंबर 3 से मैं डिकोड कर पाया। फिर से पढ़ लेते द नंबर ऑफ प्लेयर आउट ऑफ द 11 प्लेयर मेंशन हु हिट अ सेंचुरी इन मैच नंबर 1, 3 एंड 2 ऑफ द टूर्नामेंट इज इन एपी इन दैट ऑर्डर। तो भाई मैच नंबर 1, 3 एंड 2 इज इन एपी इन दैट ऑर्डर। तो ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, इन तीनों का जो सम है वो क्या बन रहा है? 3a बन रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि तीनों मैच मिला के जो नंबर ऑफ सेंचुरी स्कोर्ड है बाई ऑल द 11 प्लेयर्स वुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। अब एग्जैक्टली कितनी सेंचुरी मारी गई है वो दिमाग लगाते हैं। अभी तक अपने को ये बता दिया कि कोई एक प्लेयर ऐसा है जो कि 3 सेंचुरी मारेगा तीनों मैचेस में। कोई 5 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 2 सेंचुरीज़ मारी हैं 3 में से यानी कि 10, यानी कि टोटल 13 सेंचुरीज़ तो अपने को गिवन है। जो रिमेनिंग 5 प्लेयर है उनका कुछ नहीं बता दिया गया। अब वो 13 सेंचुरीज़ से ज़्यादा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अगर ये पाँचों लोग 1 सेंचुरी मारते हैं मतलब दे स्कोर्ड जो पाँचों प्लेयर एग्ज़ैक्टली 1-1 सेंचुरी मारते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? +5 हो सकता है, यानी कि 18 तक जा सकता है। यानी कि जो वैल्यू है वो 13 से लेके 18 के बीच में कुछ होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज़ इन फर्स्ट 3 मैचेज़ वो 13 से 18 के बीच में होना चाहिए। फर्दर वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, तो यानी कि वो क्या हो सकती है? वो या तो 15 हो सकती है, वो या तो 18 हो सकती है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होगी। ठीक है? अब ये वाले एलिमेंट से सेट के अंदर काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होनी शुरू हो जाएँगी, क्योंकि आपको पता है कि भई वो या तो 15 होंगी और या तो वो 18 होंगी, तो मतलब टोटल जो मैचेज़ हैं 15 या 18 सेंचुरी पे अपने को चलाने हैं, ठीक है? ये फर्स्ट 3 का अपने को दिया हुआ है, अपने को इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं दे रखा है। अपने को ये पता है कि पहले 3 मैच मिला के या तो 15 सेंचुरी मारी गई है और पहले 3 मैच मिला के या तो 18 सेंचुरी मारी गई है। बाकी का तो अपने को कुछ भी यहाँ दे नहीं रखा है एंड सिंस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं पूछा हुआ है तो अपने को दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक। अगर 15 सेंचुरी मारी गई है यानी कि क्या होने वाला है? ए की वैल्यू क्या आने वाली है? 5। ठीक। या ए की वैल्यू क्या आ सकती है? 6 यानी कि मैच नंबर 3 में या तो 5 सेंचुरीज़ मारी गई है, मैच नंबर 3 में या तो 6 सेंचुरीज़ मारी गई है। ये भी हम पता कर पा रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? कैन आई डिटरमाइन फॉर मैच 1 एंड मैच 2? नहीं, क्योंकि अपने को कॉमन डिफरेंस ही नहीं गिवन है। ठीक है? नाउ वी नीड टू जंप टू द क्वेश्चन एंड लेट्स सी क्वेश्चन में क्या कंडीशन पूछी गई उसके बेसिस पे विल डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है? इफ द नंबर ऑफ प्लेयर हू हिट अ सेंचुरी इन मैच नंबर 3 इज डबल। मैच नंबर 3 में डबल है यानी कि मेरे को ये वाला केस लेना पड़ेगा। ठीक है? ये वाला केस लेना पड़ेगा। अगर वो मैच नंबर 3 में डबल है ऑफ व्हाट? मैच नंबर 1 का। मैच नंबर 3 में अगर डबल है किसका? मैच नंबर 1 का, यानी कि यहाँ पे 3 आया होगा। ठीक है? उस केस में यहाँ पे क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ प्लेयर हू हिट अ सेंचुरी इन मैच नंबर 3 इज डबल ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर हू हिट अ सेंचुरी इन मैच नंबर 1 देन हाउ मेनी प्लेयर हिट अ सेंचुरी इन मैच नंबर 2? मैच नंबर 2 में कितने लोगों ने सेंचुरी मारी है? 9 लोगों ने मारी है। अरे! बहुत ही सिंपल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन। ठीक है? आसान था ये पार्ट तो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि इफ ओनली वन प्लेयर अमंग द 11 प्लेयर्स हिट्स अ सेंचुरी इन मैच नंबर 1। ठीक है? क्योंकि अपने को कंडीशन चेंज करनी तो मैंने वहाँ से चीज़ों को हटा दिया है। ठीक है? इफ ओनली वन अमंग द 11 प्लेयर हिट्स अ सेंचुरी इन मैच नंबर 1। अगर एक बंदे ने मैच नंबर 1 में हिट करा है 1 सेंचुरी, तो वो एक बंदा तो कौन होना चाहिए? वो बी ही होना चाहिए ना, क्योंकि बी एक ऐसा बंदा है जो तीनों जगह पे अवेलेबल है। बी, ठीक है? तो यानी कि बी वो एक बंदा है। तो यानी कि यहाँ पे बाकी लोगों ने सेंचुरी नहीं हिट करी, ऐसा कहना चाह रहा है। अच्छा, 1, 5 तो पीछे कितना बचा? 9, जिसमें से बी हैज़ टू बी समवन और भी कोई बचा होगा, ठीक है? ऐसे ही बी प्लस समथिंग कुछ होना चाहिए था, ठीक है? अच्छा, इधर बात करें तो 1 और 6, ठीक है? इसको ना थोड़ा जगह ऐसा बना लेते हैं ताकि वो अपने पास मिल जाए।
हाँ, इधर क्या होना चाहिए था बी प्लस सम अदर पीपल और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 और 6 7 यानी कि यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था 11 जिसमें से बी प्लस 10 पीपल 10 पीपल 5 पीपल 0 पीपल ठीक है, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी यहाँ पे 8 लोग आ जाएँगे और यहाँ पे 4 लोग आ जाएँगे, यानी कि ऐसा। अब फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं इफ ओनली वन अमंग द 11 पेयर हिट्स अ सेंचुरी इन मैच नंबर 1 देन हाउ मेनी पेयर हिट्स अ सेंचुरी इन मैच नंबर 2। यार अब देखो एक पंगा है मैच नंबर 2 में कितने लोगों ने करा है मैच नंबर 2 में 9 और 11 है या तो ऑप्शन में इधर 9 और 11 है। अब इसमें ना एक कैच है। कैच क्या है? कैच था ये पॉइंट नंबर 2 ठीक है, ये जो 0 है ये थोड़ा परेशान कर रहा है। अब पॉइंट नंबर 2 को दोबारा पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोला था कि आउट ऑफ द 11 प्लेयर मेंशन 5 प्लेयर्स स्कोर्ड एक्जेक्टली 5 मैचेस ठीक है, 11 में से 5 लोग ऐसे हैं जो कि एग्ज़ैक्टली 2 मैचेस में सेंचुरी कर ही रहे हैं। अब यार देखो वो 5 में से मतलब वो जो 5 हैं उन ये 8 में से 5 हो सकते हैं। वो जो रिमेनिंग 5 है वो कहाँ होंगे? वो यहाँ पे भी नहीं होंगे और यहाँ पे वो 4 होंगे। यानी कि कोई एक बंदा है जो कि एक ही 2 जो सेंचुरी वो नहीं हिट कर पा रहा है। ठीक है? देखना ना यहाँ पे ये वाले पॉइंट में। फिर से पढ़ता हूँ, 11 में से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो एग्ज़ैक्टली 5 मैचेस खेलते हैं। 5 मैचेस खेलने का मतलब उन्होंने 2 मैचेस में सेंचुरी मारी होगी, ठीक है? तो 11 में से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो एग्ज़ैक्टली 2 मैच में सेंचुरी मारते हैं। उनमें से 1 मैच तो ये हो सकता है, 8 प्लेयर ऐसे हैं, 8 में से वो 5 प्लेयर होंगे। बट उनका जो सेकंड मैच जिसपे उसने सेंचुरी हिट करी वो इस वाले केस में तो नहीं दिख रहा है। वो इस वाले केस में दिखेगा, यहाँ दिख सकता है कि B+5 हो सकता है और यहाँ पे भी वो B+10 पे हो सकता है। यानी कि क्योंकि यहाँ दिख रहा है यहाँ पे ये 2 मैचेज़ ऐसे हैं जहाँ पे 5 से कम लोगों ने सेंचुरी मारे तो ये गड़बड़ हो रहा है। यानी कि अपने को ये केस लेना पड़ेगा जिसकी वज़ह से आंसर क्या होगा 11 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वाज़ वेरी ट्रिकी मतलब पेपर वाले फेज़ में ज़्यादातर लोगों ने ये इसको इधर 9 और 11 मार्क करा होगा और आगे बढ़ गए होंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उसके लिए थोड़ा कंडीशन को मिटा लेते हैं। ठीक? क्योंकि बाकी सब चीज़ें कॉमन होने वाली हैं तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर अ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? इफ 10 प्लेयर हिट्स अ सेंचुरी इन मैच नंबर 2 10 लोग मारते हैं मैच नंबर 2 में, 10 लोग मार रहे हैं। उस केस में पूछा हुआ है देन हाउ मेनी फ्रेंड्स हिट अ सेंचुरी इन मैच नंबर 1 मैच नंबर 1 में कितने लोग मारेंगे? तो यहाँ पे कितने लोग होने चाहिए? 2 यहाँ पे कितने होने चाहिए? 0 तो मेरे को क्या केस लेना पड़ेगा? ये वाला केस लेना पड़ेगा तो आंसर क्या होगा 2 यहाँ पे ये केस नहीं ले सकते बिकॉज़ यहाँ पे 0 तो पॉसिबल ही नहीं, बी इज़ ऑलरेडी है, ओवर हियर। तो यानी कि मेरे को ये वाला केस लेना पड़ेगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा था जो आसान था, मतलब वो तुरंत ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है? चलो कोई लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है उसमें यहाँ से केस हटा लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल इफ इट इज़ नोन हू हिट्स अ सेंचुरी इन मैच नंबर 1, 2, 3 अच्छा, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फॉर द नंबर ऑफ प्लेयर हू हिट अ सेंचुरी इन मैच नंबर 1, 2, 3 ठीक है। पहले 15 वाला केस बना लें। 15 वाले केस में क्या होगा 5 हो सकता है, 1, 5 और 9 हो सकता है बट ये ले नहीं सकते क्योंकि हमने अभी यहाँ पे एलिमिनेट करके देख लिया था। बाकी क्या हो सकता है 2, 5, 8 हो सकता था, 3, 5, 7 हो सकता था, 4, 5, 6 हो सकता है, 5, 5, 5 हो सकता है, ठीक है? ऐसे ही अगर आते जाए तो अपना अ, 6, 5, 4 हो सकता है, 7, 5, 3 हो सकता है, 8, 5, 2 हो सकता है और 9, 5, 1 हो सकता है बट ये ले नहीं पाएँगे यानी कि यहाँ पे कितने मिलेंगे 7 केसेस, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से लेट्स थिंक ऑफ 18, 18 पे क्या दिमाग लगा सकते हैं? 18 वाला भी 1 वाला ले सकते हैं, उस पे दिमाग लगाते हैं। 18 का मतलब 1, 6 और कितना आ जाएगा 1 और 6 1, 6 और अ, 1 + 6 7, 7 + 11 ठीक है, 1, 6 और 11 हो सकता है। यहाँ पे ट्राई मार लेते हैं ना, अगर मान लो 1 लूँगा तो B+0 और यहाँ पे 6 लूँगा 11 लूँगा तो B+10 ये सेंस बन सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला केस ले सकते हैं। 2, 6, 10 हो सकता है, 3, 6, 9 हो सकता है, 4, 6, 5 हो सकता है, 5, 6 अरे 4, 6, 8 हो सकता है, ठीक है। 5, 6, 7 हो सकता है, ठीक है। 6, 6, 6 हो सकता है, 7, 6, 5 हो सकता है, 8, 6, 4 हो सकता है, 9, 6 3 हो सकता है, 10, 6, 2 हो सकता है एंड लास्ट 11, 6 और 1 हो सकता है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 11 केस यानी कि क्या होना चाहिए? 11 + 7 यानी कि 18 केस हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 वाज़ सुपर ईज़ी एंड क्वेश्चन नंबर 2 वाज़ सुपर ट्रिकी मतलब पेपर वाले फेज़ में मोस्ट ऑफ द पीपल वुड गो विथ सी ऑप्शन जो कि उनके लिए बाद में रिग्रेट निकलेगा एंड क्वेश्चन नंबर 4 तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें ये वाला पार्ट क्लिक कर गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें मिल जाएगा। हालाँकि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जब तुम्हें यहाँ पे 18 से ज़्यादा केसेज़ जब दिखाई दें, देखो यहाँ पे 18 से ज़्यादा दिख जाते, तो आपको यहाँ पे दिमाग में शायद क्लिक करता है कि यार कुछ गड़बड़ कर रहा है, मे बी दैट वुड स्ट्राइक दैट पार्ट, ये वाला पार्ट आपको स्ट्राइक करेगा। एंड एक्चुअली में मैं जब मैंने इसको पहले सॉल्व किया तो यही चीज़ मेरे को क्लिक करी थी। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।